सहज आपके पास तुम्हारे पास पावर पॉइंट नहीं है. नाउ यू आर ट्राइंग टू प्रेजेंट दिस केस एज यू वुड इन द एग्जाम. Go ahead. Sahaj presented a beautiful case of his condition a few days back. So I have reliance on him that he will be able to present this case comprehensively, precisely and correctly. Comprehensive मतलब he will miss nothing. Precisely means he will not get confused and add this or that. You say only what is needed, and correctly means that you will not say something which is not, or not say something which is. Alright? Go ahead. My patient came with a complaint of pain in hips since 1 year and with loss of function and the right hip is 1 year. फोन उठा के रिकॉर्ड कर. According to the patient, patient came. Patient is a Patient is 18 year, 20 year patient is an 18 years old boy. president of Patient is an 18-year-old is a boy, resident of Hisar, Uttar Pradesh. He came. who was completely alright. Who was completely alright 2 years back. When he fell from on the ground and he started complaining of pain 2 years back. But the pain was acute in onset. Pain in the hip. Pain in It was acute in onset. acute in onset, dilating height, non-radiating. It aggravated a movement and relieved on taking medication. Then Where was the pain? Where was the pain? pain was right hip joints. Right hip joint, forward, backward, lateral, medial. And Anterior. Then there was decrease in pain for around was he able to walk after that Yes, injury? he was able to walk and do his other function. He was able to sit and squat easily for 1 year. Then he started complaining of Aggravate हुआ, ये कम हो गया. सर 1 साल में कुछ नहीं हुआ है, कोई एग्रीवेशन कुछ नहीं हुआ. Then from around past 2 to 3 months, his pain and his deformity has aggravated. Now he is not able to properly sit as a squat as from past 2 months. Then he went to some local practitioners. And his gait has become abnormal. It has become a problem. Gait is abnormal, standing is abnormal, sitting cross-legged is abnormal. बताया cross-legged? Cross-legged बताया? Can he sit normally? No. What is the definition? He was. अब देखा ना, सवाल क्या होता है कि अगर तुमने किया नहीं तो तुम बता नहीं पाओ. बेटा पालती मार के बैठ के दिखाइए. बैठी लगता बेटा सपोर्ट. पहली बार उसका जो राइट हिप है वो एबडक्ट नहीं हो पाता है ना, और एक्सटर्नली रोटेट नहीं हो पा रहा है ना, तो वो पालती मार के नहीं बैठता. बेटा उनको बैठ सकते हैं. ये तो आपने देखा ये हिप फ्लेक्स नहीं हो रहा पूरा, ठीक है, और इंटरनली रोटेटेड है. इंटरनली रोटेटेड है. देखिए आगे आगे फ्लेक्स पूरा नहीं हो पा रहा, इंटरनली रोटेटेड है नहीं. तो
वो कंटिन्यूसली और स्पाइन से वेट फॉरवर्ड रखने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो पीछे गिर जाएगा। अगर ये दो टेस्ट तुमने कर लिए होते तो यू वुड हैव बीन मोर अब लेट तो देखा ना, वॉकिंग, उसके बाद स्टैंडिंग बोथ लिम्स, स्टैंडिंग वन लिम्ब, right and left, then sitting on a chair, squatting, cross-legged. Then you start examining the patient while he is lying. And while he is lying, 4 things to be confirmed: good light, hard bed, comfortable patient, and proper exposure. प्रॉपर एक्सपोजर क्या, ये जो है यहाँ से होना चाहिए एक्सपोज, ये ट्रोकेंटर और ASIS सब जगह दिखना चाहिए, और वो निपल लाइन, ठीक है। ठीक, नाउ द पेशेंट इज लाइंग। General examination, systemic examination, any contribution? No. So general examination, systemic examination, not contribution. But then there are certain special regions which must be examined before you start examining the affected. Those regions are top to bottom, ability to open mouth, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर हिप को इन्वॉल्व कर रही है, अगर मुंह नहीं खोल पाता तो बेटा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन नहीं कर पाओगे। एबिलिटी टू ओपन माउथ, कितनी अंगुलियां दांत के बीच में चली गई। द सेकेंड से एबिलिटी टू मूव सर्वाइकल स्पाइन, अगर तुम इसको एक्सटेंड नहीं कर पाए तो ट्यूब डाल पाओगे नहीं डाल पाओगे। चेस्ट एक्सपेंशन कितना क्लियर, क्योंकि चेकलिस्ट पूरी नहीं है ना। उसके बाद स्पाइन एग्जामिनेशन में स्पाइन में कोई डिजीज नहीं है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पाइन को भी इन्वॉल्व करेगी। उसके बाद एब्डोमेन एग्जामिनेशन, उसके बाद पेल्विक एग्जामिनेशन में स्पेशली प्रोस्टेट, क्योंकि प्रोस्टेट से सेकेंडरी जो है नेक ऑफ फीमर माना। उसके बाद ऑपोजिट हिप, ऑपोजिट नी, ऑपोजिट फुट एंड एंकल, सेम साइड फुट एंड एंकल, सेम साइड नी, and neurological examination। ये चीजें, ये चेकलिस्ट है before you go to the affected, because otherwise there will be what is called as red tag effect। red tag effect क्या होता है कि सांड को वो ग्लेडिएटर दिखाता है ना, लाल झंडा, आप पहले लाल झंडे के पीछे भागे, ग्लेडिएटर दिखाई दिया, उसने आपकी तलवार, यही तो होता है ना पैरेंट टू गुड फाइट में। तो रेड टैग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि कूद पड़े साले हिप पे, ठीक है। तो ये पूरे के पूरा लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट बिफोर यू कम टू एग्जामिन द हिप, ओके। Now the four hips. Then the examination of the hip is divided into inspection, palpation, measurement, movement, deformity, and special things. Inspection, palpation, auscultation, percussion होता है ना। Inspection, palpation, measurement, movement, deformity, and special things. Now you start with इधर से देखो, इधर से बोलो। Inspection, see there is lumbar lordosis. Then we see that दिख रहा है ना lumbar lordosis? see
the ASIs of the right side is lower and left side is higher. Pelvis is tilted towards the right side. There is no scar sinus seen, no discoloration of the skin, no engorged veins. अब इसमें ये होता है कि जैसे इसने कहा pelvis is tilted towards the opposite side. It is a correct expression. But if he would have said that his right pelvis is lower than the left, lower and posterior to the left, that would have described it more accurately. You can see that the hip at the right side is mixing deformity. No, then you don't say deformity. Inspection में deformity नहीं करते. The hip on the right side is flexed, abducted, externally rotated. Correct? There is wasting on the right side. The patella is pointing outwards. The knee is flexed. ठीक है? He can dorsiflex the ankle. कभी कभी sciatic nerve injury में LCN में dorsiflexion of ankle चला जाता है. And then you ask him to straight leg. चला. यहाँ से पैर को बिना घुटने ऊपर को उठाओ सीधा. ऐसे नहीं, सीधा ऊपर. बिना इसको घुटना नहीं मोड़ना, सीधा ऊपर को उठाओ. उठा दिया. Straight leg raising is possible. Traction extensor नहीं कर पाएगा. All right. So, to repeat, there is increased lumbar lordosis, right ASIS is lower, there is no swelling, scar or sinus around the right hip, the attitude of the right hip is flexed, abducted, externally rotated, there is wasting of the thigh, the patella is pointing outwards, the एक चीज तुमसे जो छूट गई वो ये है कि अगर ये पूरा सीधा होता देन यू वुड हैव कमेंटेड वेदर दिस medial malleolus is lower than this, है ना? He now it is higher. Then ankle dorsiflexion, that we have tested the LPN and the patient cannot raise the limb anymore. Correct? Inspection complete? Yes, sir. Go on to that. Palpation, we confirm our inspectory findings. We see that the ASIS of the right. नहीं रिपीट करने की जरूरत नहीं होती. On palpation, findings of inspection are confirmed. Full stop. है ना? And then there are 5 T's and 1 T. The 5 T's are temperature, Tenderness. transmitted movements, trochanter, telescope. And 1 B is vascular sign of Shannon. Please go ahead and show all these. Temperature, tenderness, transmitted movements, telescopy, trochanter, vascular sign of Shannon. We will check the temperature of the affected side and compare it with the other side and opposite. Not this. North India. Temperature is always tested from the back of the neck. First the normal, then the abnormal, and then the normal again. टेस्ट गलती कर गए बेटा तो मरोगे. चलो, do the same. Test the normal. We will first test the normal side, then the abnormal side, and then again the normal side. Any change? Slightly higher. Temperature is slightly higher on the right side as compared to the left. Tenderness. Check the tenderness points. यहाँ कोई दर्द है? यहाँ कोई दर्द? यहाँ कोई दर्द? बस बेसिकली सिंपल सी बात होती है. There are 2 tenderness. One is Karp's triangle, which is neck femur or hip, and the other is tenderness in the trochanter. 2 tenderness देखो, आगे देखो. यहाँ कोई दर्द है?
ट्रोकैंटर की जब टेंडरनेस देखी जाती है तो यू नेवर एग्जामिन फ्रॉम द साइड लाइक दिस, बिकॉज एनी टिश्यू हियर if it is tender will also give you the trochanteric tenderness. Always test tenderness by pressing the anterior and posterior border. तो क्या करते हैं कि पहले ट्रोकैंटर, अगर ये ट्रोकैंटर है तो पहले इसके एंटीरियर बॉर्डर फील कर लेते हैं इधर और इधर दोनों, तो उससे ये पता लगाता है थिकनिंग, ट्रोकैंट्रिक थिकनिंग, ट्रोकैंट्रिक लेवल एंड ट्रोकैंट्रिक टेंडरनेस. डू इट. Present. Usually सलाह एग्जामिनर दोबारा चेक करता है. अब इन्होंने टेंडरनेस देख ली सरदार की, है ना, एंड व्हाइल ही वाज एग्जामिनिंग द टेंडरनेस ही वाज नॉट सीइंग द फेस ऑफ द पेशेंट, सो ही नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन द ग्रेड ऑफ टेंडरनेस. गड्ढा हो जाएगा नहीं है, ये दर्द है बेटे. But trochanter is not thickened. कहते हैं थोड़ी दर्द होती है तो मान रहे, पर उसके चेहरे पे कोई चेंज नहीं आया. मे बी ग्रेड 1 टेंडर, मे बी सरदार जी ने जोर से दबा दिया. आगे Then we check the transmitted movements. put your hand on the trochanter and put and rotate the femur. Transmitted movement present. You can also test transmitted movement if you are feeling the swelling of the head. मान लो gluteal region में तो मैं posterior dislocated disc में अगर swelling मिल रही है, to say that it is the head, you test the transmitted movements. Okay? Telescope. Telescope it is. बहुत दर्द होता है. तो सवाल ये टेलीस्कोपी इस तरफ अगर हम करके दिखाएं, तो ये फ्लेक्स कर लिया तुमने, पेल्विस को फिक्स कर लिया, देन अलोंग द फीमर यू मूव द pelvis like this. This is compression, alright, and this is distance. So if the pelvis can move along this, along its direction by compression and distraction, telescopy test is positive. Telescopy, transmitted movements, trochanter, है ना, क्या क्या हो गया? Tenderness, temperature, हो गया. Now vascular sign of Narad देखो, इधर की femoral artery देखो, उधर की भी. एक जो चीज बिल्कुल पॉजिटिव है कि जब इससे कॉम्प्रेटेड टेलीस्कोपी की तब वो जो है वो उसको पेन हुआ. इसमें तुम्हें बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर ये जॉइंट है तो अगर लिगामेंट्स में प्रॉब्लम है तो स्ट्रेच पे टेंडरनेस आएगा, है ना, और अगर इम्पैक्ट पे टेंडरनेस आ रहा है इसका मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज इन्वॉल्व. समझ गए? तो यहाँ पे जो तुमको ये फिजिकल साइन मिला कि जब तुमने कॉम्प्रेस किया तब पेन आया, इसका मतलब इम्पैक्ट टेंडरनेस है. दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट टेंडरनेस. So this is stretch tenderness and this is impact tenderness. Okay, होगा सर? Vascular sign of Narad negative. अब सवाल आता है मेजरमेंट. मेजरमेंट में ये है कि there are two lengths that are measured. One is the apparent length and the other is the true length. Apparent length is measured, अब ध्यान से देखिएगा, with both limbs parallel to each other and parallel to the trunk. Since it is not possible to bring both limbs parallel to each other and parallel to the trunk, therefore apparent length cannot be measured.
However, since ASIS is lower, acetabulum is lower, therefore this limb must be apparently long as compared to the opposite limb. Pelvis जो है, अगर यो tilt हो गई तो इधर वाला लंबा हो गया, ठीक है? So you can assume that there would be apparent lengthening, but you cannot measure apparent length. Apparent length is measured from episternum to the tip of the medial malleolus, with both limbs parallel to each other and parallel to the trunk. ठीक है? If you can't do it, you say you can't comment on apparent. All right? Now you will measure true length. True length is measured from episternum or umbilicus square हो गई? हो गई? With umbilicus to the tip of the medial malleolus, with pelvis square, ASIS at the same level, and both limbs in identical position. इसकी identical position मांगी, ठीक है? Abducted, externally rotated, in identical position. Better? Tip of the ASIS to the medial malleolus, square only, square. So there is 2 centimeters of true shortening on the right side. Now where is that true shortening will have to be determined. One important way to determine it is that you can flex both knees. दर्द हो रहा है क्या बेटा? And if this knee is lower than this, is it? Huh? Right one is higher. नहीं. सीधा लेटा. इसका मतलब कम से कम फ्लेक्शन में तो जुड़ा नहीं है. So what you do, you extend this as much as possible, and now you measure from the ASIS in the same exact position. उसको स्क्वायर करो, हो गया? इधर आइडेंटिकल आ गई. So what you do, you measure from this to adductor tubercle. Come like this is adductor tubercle. Come like this, feel it, this is adductor tubercle. Not like this. Come like this is adductor tubercle. Feel from normal to the tubercle side. And anteesophageal spine here. इसको फ्लिप कर दो, फ्लिप कर दो. तो इसका मतलब ये हुआ कि the now you think that the shortening of 2 centimeters is above the knee, correct? All right. Now you have to find out whether it is above the trochanter or below the trochanter, and you will draw a Bryant's triangle to prove it. What is a Bryant's triangle? Bryant's triangle, is a right angle triangle, correct?
राइट एंगल ट्रायंगल में तीन बात होती है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, where the hypotenuse is line joining the tip of the ASIS to the tip of the trochanter. Draw the bread. पहले इस तरफ कर लो, फिर दूसरे को आइडेंटिफाई कर लो, पहले उधर ड्रॉ कर लो। तुम्हारे एग्जामिनर बता रहे थे कि उन्होंने ग्रैंड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ की जाती है, ये नहीं बताया था। हाँ बोलो राकेश। हाँ सर वो ये लोग पकड़ नहीं पाए तो हमने तो सही होते हैं कि अभी तो इसमें ग्रो ऐप में 4,500 ट्रांसफर क्या अब मतलब ये है कि 24 दिन के बाद कलम नोट में 1 लाख 1,00,000 का अंदर इधर तो मेरे को प्रोटेक्ट करते हो। हाँ ये चालू हो ना हो तो कोई वाले नहीं हम लोग कर सकते हैं। सर ठीक। सर आप कितने देर में आएंगे अभी? तुम क्या घर पहुँच गए? नहीं सर अभी हम एक मेट्रो कॉलेज में हैं। हम फिर ये चेक करा लेंगे ओके हम चल लेंगे। सर यूपीआई का काम करवा लेंगे। फिर तो मान लो जब वहाँ पे मेरे अकाउंट पूरा मैं ऐड करके जी क्या चाहिए? ठीक है, आपको समझा देना कैसे होता है। तो आप सर कितनी देर में आएंगे अभी? हम घर हम एक के बाद आएंगे, एक के बाद आएंगे। तब बात होगा तो जो अगर डिस्टेंस है तुम ना यहाँ क्या करोगे? फोन पे इससे बात हो रही। ठीक गिरा देखेगा। There are four methods by which you can say that the trochanter is raised as compared to opposite side. The first is that you join the ischial tuberosity to the anterior iliac spine. Anterior iliac spine, ischial tuberosity to the anterior iliac spine, and that line is called as Nelaton's line. And the tip of the trochanter may be higher than the Nelaton's line. The second is that you join the tip of the trochanter to the anterior iliac spine and then extend it forward. Normally, it is called as the shoemaker's line. Normally, it should cross above the umbilicus or at the umbilicus. If it crosses below the umbilicus, then that means the trochanter is raised. The third is called as the Shinese parallelogram. You join both anterior iliac spine and both tip of trochanter. On the side that the trochanter is raised, the lines converge. Either trochanter raised or the line converge कर जाएगी. And the fourth is Brandstein. He is showing that 2 centimeters of true shortening is at the Brandstein. बहुत सिंपल है, इधर से फील करो और यहाँ पे बहुत है ना। दिखाई देगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसी पे भैया पास फेल हो जाता है, चाहे बीबीएस हो चाहे मैथ हो। ये फिजिकल साइंस गलत हो गए तो गाड़ी डूब जाएगी। तो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर साहब बेचारे को इसलिए फेल कर दिया क्योंकि वो ये परपेंडिकुलर ड्राइंग, परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं ब्रांड ट्रायंगल की, ये नहीं बना पाए। और परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं कि सबसे पहले जो है हाइपोटेन्यूज बनाते हैं,
उसके बाद वहां से टेबल पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, फिर टिप ऑफ ट्रोकेंटर से इस परपेंडिकुलर पे दूसरी परपेंडिकुलर ड्रॉप। कितना है? भैया जो रिकॉर्ड कर रहे हो वही आप 8th सेमेस्टर वालों को भी देता है। Exactly 2 centimeters of shortening above the trochanter. Correct? Now movements, measurement, movement, deformity. तो मूवमेंट कैसे टेस्ट करते हैं? तो तुम ये देख रहे हो कंटिन्यूअसली ये बेचारा क्या कर रहा है कि ही इज कीपिंग दिस आउटवर्ड्स, एंड इफ ही इज कीपिंग दिस आउटवर्ड, इफ यू डू दिस इट विल बिकम नॉर्मल। अब ASI सेम लेवल पे आ गई। इसका मतलब दिस इज हिज स्टेट ऑफ रोटेशन। अब ये रोटेशन इसको बर्दाश्त नहीं है, तो इसको क्या करता है, यो कर देता है, तो दिस बिकम्स लोअर। ठीक है ना? तो अब अगर हम मूवमेंट टेस्ट करना चाहें तो सबसे पहली बात हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सेस पर करेंगे, और यो हमने हाथ डाला तो लंबर लॉर्डोसिस बढ़ी हुई है, तो हमने अपने को यो मूव किया, ठीक है, और फिर नॉर्मल साइड को हमने फ्लेक्स कर दिया। अब कंप्लीट हो गया। नाउ इट इज कंप्लीट। नाउ व्हाट वी डू, वी स्टार्ट एक्सटेंडिंग। बस 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 बस, जितना एंगल बचा उसकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। अब हमने क्या किया कि इसको फ्लेक्स करना शुरू किया धीरे, वेरी वेरी जेंटल, वेरी जेंटल। रुक गया? ठीक है, तो 80 डिग्री तक फ्लेक्शन है और फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है 60 के करीब। तो रेंज ऑफ फ्लेक्शन हुआ 60 डिग्री टू 80 डिग्री। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सेस पर मूवमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम कहते हैं कि व्हाट इज मूवमेंट के बारे में क्या समझना है? मूवमेंट के बारे में ये समझना है कि देयर इज अ न्यूट्रल पोजीशन व्हिच इज 0, देयर हिप इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देयरफॉर देयर आर 3 एक्सेस। साइड टू साइड एक्सेस पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा, सुपेरो इन्फीरियर एक्सेस पे इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन होगा, एंटेरोपोस्टीरियर एक्सेस पे एडक्शन अबडक्शन होगा। ठीक है, अब अगर ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट क्यों होगा, कि कम क्यों होगा? या तो पावर नहीं है, एक्टिव मूवमेंट जाएगा, पैसिव पूरा होगा, और या पावर नॉर्मल है पर मूवमेंट में ब्लॉक लग रहा है। ये ब्लॉक जो है वो आउटसाइड से ज्वाइंट हो सकता है, ये इनसाइड से ज्वाइंट हो सकता है। अब मान लो आइलियोसॉस मसल जो है वो फ्लेक्सर है, और आइलियोसॉस या स्पैज़म में है या फाइब्रोज हो गया। तो सबसे पहले आइलियोसॉस का जो इनएबिलिटी टू एक्सटेंड है, वो सबसे पहले एक्सटेंशन को कम कर देगी, एक्सटेंशन इज लेस। उसके बाद वो एक्सटेंशन को एब्सेंट कर देगी, ठीक है, और फाइनली वो फ्लेक्शन में ऐसी पोजीशन ले आएगी बियॉन्ड विच एक्सटेंशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें दिस इज डिफॉर्मिटी। व्हाट इज डिफॉर्मिटी?
deformity is the position of a joint in a particular range, not neutral, beyond which opposite movement is not possible. Crystal clear? तो जब हमने लंबर इसको जो है कॉम्पेंसेट करने के लिए डिफॉर्मिटी को, इसको लिम्ब को तो सीधा लाना है, इसने क्या किया, इस स्पाइन को हाइपर एक्सटेंड कर दिया, लॉर्डोसिस आ गई। तो सबसे पहले हमने ट्रू पोजीशन जानने के लिए ऑपोजिट हिप को फ्लेक्स करके लॉर्डोसिस ऑब्लिटरेट की। पर जो पोजीशन हमको मिली वो पोजीशन डिफॉर्मिटी नहीं है। उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड करना शुरू किया और जिस पोजीशन पे एक्सटेंशन रुक गया वो डिफॉर्मिटी है। बिकॉज डिफॉर्मिटी बाय डेफिनेशन इज पोजीशन ऑफ अ जॉइंट इन अ पर्टिकुलर रेंज बियॉन्ड विच ऑपोजिट मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऑपोजिट मूवमेंट। अब इसके बाद जब हमने इसको जो है फ्लेक्सी कर रखा था, जब हमने इसकी पोजीशन यही रख रखी थी, तो हमने रेंज भी देख ली, हमने इसको फ्लेक्स किया। तो अब इसकी जो मूवमेंट है जॉइंट की, इट इज इन द फ्लेक्शन एक्सटेंशन रेंज में 60 डिग्री डिफॉर्मिटी से 80 डिग्री तक। द सेम थिंग वी विल डू फॉर एडक्शन एबडक्शन एंड सेम थिंग वी विल डू फॉर रोटेशन। करेक्ट? एडक्शन एबडक्शन में क्या करते हैं, देखने इसको नीचे निकालो, सबसे पहले तो आई मस्ट मेक श्योर दैट आई एम सीइंग द anterior spine correctly. Secondly, the patient must be lying absolutely straight. Thirdly, छोड़ दो बट गिरोगे, छोड़ दो इधर, छोड़ दो। Now I am seeing that the right anterior spine is lower and posterior to the left anterior spine. So I internally rotate. So first of all, what I do, I start abducting the hip till the anterior superior spine becomes square. Correct? Then I start adducting it, and as soon as this reverses, I am adducting it. This is the abduction deformity. So from this position, where it begins square, I started adducting it, and what remains is the abduction deformity. The second thing is that I flex both joints like this. Alright? And this femur must be this rotated like this, so that this is pointing inwards. So this is external rotation. Femur is rotated like this. So this is pointing inwards. So this much is the external rotation. And when I try to do this much is the internal rotation. So here, if I say that internal rotation is restricted, it means the same thing, same pathology as the external rotation deformity. Okay? And this is the internal rotation here, and this is the external rotation. So the rotation is restricted. There is an abduction deformity. There is an abduction range of movement, and the rotation is restricted. That means external, internal rotation both are restricted, but internal rotation is restricted more than external rotation.
So when movement on all three axes is restricted, internal rotation also restricted, external rotation also restricted, the pathology is within the joint. It is intra-articular. Correct? अगर मान लो कि इंटरनल रोटेटर स्पैज़म में होता या कॉन्ट्रैक्टेड होता तो उसने एक्सटर्नल रोटेशन कम किया होता, इंटरनल रोटेशन तो नॉर्मल होता। अगर एक एक्सिस पे एक ही मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है तो कॉज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर। बात समझ में आ गई? मूवमेंट समझ में आ गया, तीन एक्सिस समझ में आ गई, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर इंट्रा आर्टिकुलर समझ में आ गया, ठीक है। और ये भी समझ में आ गया कि जो भी पैथोलॉजी है पहले मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगी, फिर एब्सेंट करेगी और फिर डिफॉर्मिटी होगी। तो अगर तुमने कह दिया कि साहब फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है 30 डिग्री की, उसके बाद तुमसे एग्जामिनर ने ये कहला लिया फोर्स करके कि साहब 10 डिग्री एक्सटेंशन है, तो भैंस पानी में चली गई, नहीं चली गई, है ना। तो कितना भी हड़का है, अगर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कह दी तो एक्सटेंशन रेट मत कह। बात समझ में आ गई? हाँ, तो अब मूवमेंट हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई। अब स्पेशल टेस्ट आ गए, एक तो मॉरिस बाई ट्रोकेंट्री, जितना अपने आप हो जाती है। तुमने ये देखा ना कितना जेंटली, कितना केयरफुली, बिना पॉजिंग पे, एक यहाँ रजिस्टर रखो, एक यहाँ रजिस्टर रखो, है ना, और इसकी क्यूबिक सिम्फाइसिस से डिस्टेंस नाप लेंगे। तो अगर इधर का ट्रोकेंटर अंदर चला गया ये कैसे थ्योरी से बताया जाता है? पकड़े रहना, चीजें नाप लो। अब बेचारे ये MS वाले थे ना हमारे करीब, इनके साथ हमने कभी एग्जामिनेशन किया ही नहीं किया। जरूरी है ना, है? एक सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ट्रोकेंटर अंदर है टुवर्ड्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब ये इसलिए है कि या तो सेंट्रल डिसलोकेशन है जिसमें कि हेड एसेटाबुलम को फ्रैक्चर करके अंदर चला गया, समझ गए? इसको कहते हैं मॉरिस बाई ट्रोकेंट्री। और या हेड कोलैप्स कर गया या नेक कोलैप्स कर गई। That is why that trochanter is more inside as compared to outside, है ना। So this is called as Morris by trochanter. Finally, अगर ऐसा है तो you want to do a per rectal examination to confirm whether the inner wall of the pelvis has moved inside or not. But we will not do that. Then there are in the बच्चों में CDH देखने के लिए दो टेस्ट होते हैं। ट्रोकेंटर को पकड़ के पीछे ले जाओ तो पोस्टीरियर डिसलोकेट हो गया, और आगे ले आओ हेड को, ये हेड है यहाँ पे और ये ट्रोकेंटर, यूँ पकड़ के अगर बाहर ले जाओ अंदर ले जाओ तो दोज आर टेस्ट फॉर कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। एंड बाहर ले जाओ इज बार लो, अंदर ले आओ इज ऑटोलानी, ठीक है। तो दोज दैट कंप्लीट्स योर एग्जामिनेशन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है।
ठीक है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे पूछते व्हाट इज योर डायग्नोसिस। आपने कहा कि पेन है 2 साल से, चोट लगी थी, शुरू में प्रॉब्लम कम थी, बाद में धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है। 2 महीने से समस्या ज्यादा हो गई। फ्लेक्शन और एबडक्शन है, डिफॉर्मिटी है, एबडक्शन बहुत ज्यादा है, फ्लेक्शन भी, फ्लेक्शन रेंज ऑफ मूवमेंट है पर कम है, करीब करीब फिक्स हो गया है ना, बहुत बहुत कम है रेंज ऑफ मूवमेंट, बट देयर इज अ रेंज ऑफ एन अटेम्प्ट टू मूव इज फिनिश। ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये फाइंडिंग्स समराइज कर रहे हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन कर पाए कि जो हमारे दिमाग में वेरियस डिजीजेस की पिक्चर छुपी हुई है उनमें से ये वाला पैटर्न किसको फिट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब पैथोलॉजी इंट्रा आर्टिकुलर है, जॉइंट सर्फेसेस इन्वॉल्व, ठीक है। जब पैथोलॉजी इंट्रा आर्टिकुलर है, जॉइंट सर्फेसेस इन्वॉल्व है और सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व है, तो हमको मालूम है कि यार किस तरह की पैथोलॉजी हमने टीवी में देखी, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर हम इस पे एम्फेसिस दें कि ये ट्रॉमा है, तो सेंट्रल डिस्लोकेशन ऑफ हिप में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि खास तौर से मॉरिसस बाइटोकेंटिक टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि टीबी स्टेज 1 जो होती है उसमें साइनोवियल एफ्यूजन होता है, तो हिप गोज इनटू फ्लेक्शन, एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें एब्डक्शन और फ्लेक्शन तो है ही कम से कम, अगर एक्सटर्नल रोटेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जब आर्टिकुलर कार्टिलेज रब करना शुरू होता है तो पेन होता है और पेन से मसल स्पैज़म में जाता है। सबसे पावरफुल मसल जो स्पैज़म में जाता है वो आइलियोसॉस है, वो फ्लेक्स एडक्ट इंटरनली रोटेट कर देता है। तीसरा ये है कि हेड और एसेटाबुलम डिसॉल्व हो जाते हैं, ये लिगामेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए ये जो हेड है ये ऊपर माइग्रेट कर जाता है, इससे ट्रू शॉर्टनिंग हो सकती है। इसमें ट्रू शॉर्टनिंग है, तो इसमें जो खाली ट्यूबरकुलोसिस स्टेज 2 के अगेंस्ट पॉइंट है वो ये है कि एबडक्शन है, एडक्शन नहीं। और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है तो सेंट्रल डिस्लोकेशन के फेवर में आ गई बात। तो ये जो दिमाग पैटर्न रिकॉग्निशन वाला यहाँ पे है वो इसमें जो है ये सोचेगा कि भाई हुआ क्या, तो हिस्ट्री ऑफ इंजरी हुई, सेंट्रल डिस्लोकेशन ऑफ हिप हुआ, और वो जो सेंट्रल डिस्लोकेशन ऑफ हिप है उसमें जो मार्जिन ऑफ एसेटाबुलम था वो उसको हेड को काटने वाटने लगा, तो प्रॉब्लम बढ़ती, ठीक है। ये एक पैटर्न है। और दूसरा पैटर्न है कि यार आर्टिकुलर कार्टिलेज को टीबी खा गई, तो पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, लॉस ऑफ फंक्शन हुआ और मसल स्पैज़म के हिसाब से डिफॉर्मिटी हो गई। पॉइंट अगेंस्ट ये है कि डिफॉर्मिटी एडक्शन होनी चाहिए थी, यहाँ पे एबडक्शन हो गई। और तीसरी बात ये है कि जब डिस्लोकेशन होता है टीबी में तो ट्रू शॉर्टनिंग होती है, तो उसमें फ्लेक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन बिल्कुल मस्ट हो जाता है, बिकॉज द हेड गोज पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। अगर ये फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन है, तो फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन फॉलोइंग ट्रॉमा इज एंटीरियर डिस्लोकेशन और सेंट्रल। एंटीरियर डिस्लोकेशन में लेंथनिंग होती थी, इसमें शॉर्टनिंग हो रही है, इसलिए प्रॉब्ली सेंट्रल डिस्लोकेशन, ठीक है। तो तुम्हारे लोगों की समझ में क्या आ रहा है, कौन सा है? आप लोग अपनी बेट किस पे रखोगे हुजूर? वेजर किस पे लगाओगे?
10,000 रुपए या हो जाएगा या मिल जाएगा। कौन सी डायग्नोसिस? हम तो सेंट्रल डिसलोकेशन पे लगाने की कोशिश करेंगे, पर इसमें बस खाली एक ही बात है कि इंजरी हुई थी, देन ही कुड गेट अप एंड वॉक। सेंट्रल डिसलोकेशन में यूजुअली ऐसा हो नहीं पाता। अब इसमें एक चीज और हम लोग कर सकते हैं बहुत केयरफुली, वो ये है कि एक तो लंग को बहुत केयरफुली देख सकते हैं कि टीबी तो नहीं है, और दूसरी चीज हम लोग यहाँ मैटेड लिम्फ नोड वगैरह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि मैटेड लिम्फ नोड मिल जाए तो टीबी की पॉसिबिलिटी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब ये हम लोगों की वो क्लिनिकल डायग्नोसिस और डिफरेंशिएट है। Now how will I investigate? Why? The first group test HBC, TLC, DLC, GPP, liver function test, then blood, the SGOT-PT, blood urea, serum creatinine levels, then the PT, INR, and the तो बात यह है कि भैया हर आदमी अपना जो है रोट विद्या के हिसाब से है ना, अगर 13 का पहाड़ा आता है, 2 का पहाड़ा आता है हिंदी वाला, तो कैलकुलेशन बड़े फास्ट हो जाते हैं। इसमें यह है कि हेमोग्लोबिन, TLC, DLC, ESR, GBP, BCCT, ब्लड यूरिया, ब्लड शुगर, यूरिन एंड स्टूल, क्या असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट। जब तक मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब, तब तक मेरा दिमाग ये सोच रहा है कि आगे क्या करूँ। उसके बाद मुझे जो है हिप की इमेजिंग करनी है, तो मैं एक्सरे ऑफ द पेल्विस करूंगा, APU विद बोथ हिप्स आइडेंटिकल पोजीशन, तो मैंने एक्सरे हुआ है। तो ये कभी पहले नहीं देखना चाहिए। तो ये एक्सरे अगर तुम देखो कि जो भी पैथोलॉजी है, ये पैथोलॉजी हेड को खाए जा रही है। देखो सेंट्रल डिसलोकेशन तो नहीं है, और नेक ट्रोकेंटर हैज गॉन नियरर द एसेटाबुलम। तुम्हारा मॉरिसन बाय ट्रोकेंट्रिक टेस्ट जो है, जो बता रहा है भाई, जल्दी जल्दी देखो यार, सब लोग देखते पे आगे चलो। इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि मान लो तुम्हारी फिजिकल डायग्नोसिस बायोप्सी कर लो, हिस्टोलॉजिकली कंफर्म हो जाएगा, उस हिसाब से उसको ट्रीट करो, है ना। और उसके बाद जब तुमने एंटीट्यूमरल ट्रीटमेंट देके ट्रीट किया और ट्रैक्शन देके डिफॉर्मिटी फंक्शनल पोजीशन पर ले आए, ठीक है, उसके बाद 6 to 8 वीक्स पे उसको एसेस करो, और फिर तुम्हारे पास 2 प्रॉब्लम हो सकती है, या पेन या डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी करेक्ट करने का तरीका है सब टोटेंटिक करेक्टिव ऑस्टियोटॉमी। पेन ठीक करने का तरीका है फ्यूजन। अब टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट, इतनी छोटी उम्र में अगर टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करोगे तो कॉस्ट प्रोहिबिटिव। और दूसरी बात, he will always need ground level activity. Therefore, you have to ask what he needs. He needs movement, he needs stability. If he needs movement, then you excise the head of the femur, excisional arthroplasty.
And to stabilize the hip, you do a pelvic support osteotomy, which is called as Milch fasciculotomy. ठीक है? एज क्या है उसकी? मतलब ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो रही है करीब, तो ग्रोथ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? So that is how a hip case is discussed. Now you have